Hello students, here we are going to start with a new chapter, that is Principles of Inheritance and Variations. We will start with the Mendel's work. Gregor John Mendel, who is known as the father of genetics. He gave laws of inheritance. Now what is the meaning of inheritance? The meaning of inheritance and heredity is approximately same. That is the transmission of characters from one generation to another generation. And the laws of inheritance which were given by Mendel are considered as the basis of the genetics, because he was the first scientist who worked in this field. But unfortunately at his time his work was not recognized. और ये उपाधि जो थी फादर ऑफ जेनेटिक्स की उसको उसके मरने के बाद मिली. When in 1900 the three more scientists, they were Hugo de Vries, then Correns and von Schirmack. They worked in this field again and they rediscovered the Mendel's work. Then he was given this name, the father of genetics. They recognized his work. They saw that the work which was done by Mendel in this field was really appreciable. He was the one who finds that there is something behind the transmission of characters from one generation to another generation. एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ तो है, और ये कुछ ना कुछ क्या थे, ये थे जीन्स जो कि हमारे क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट होते हैं. इन जीन्स को, इनकी एलिलीज को मैंडल ने नाम दिया था फैक्टर्स. सो ही एक्सपेरिमेंटेड ऑन पी प्लांट. जो पी प्लांट उसने सिलेक्ट किया था उसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे, and these reasons were already told to you, that these reasons were the short life cycle of the plant, pea plant, the several contrasting characters which were morphologically, their morphological appearance, their phenotype. All these reasons made him realize that he should work on the pea plant. Now first of all he considered only one character, that is the height of the plant in pea plant, and he crossbreed two plants. One was the taller one, the other one was the dwarf. और उन प्लांट्स का जब उसने क्रॉस कराया तो उसको क्या रिजल्ट मिला, उसने जो एलिलीज लिए प्योर टॉल प्लांट के लिए वो लिए कैपिटल टी और ड्वार्फ के लिए लिए स्मॉल टी. और जब उनको क्रॉस करा तो उसने ये देखा कि फर्स्ट जनरेशन में थी जो उसको सीड्स मिले, उसने सीड्स को ग्रो किया फर्स्ट जनरेशन में, तो उसने ये पाया कि सारे के सारे प्लांट्स जो थे वो टॉल थे. ठीक है, तो there was a confusion. Then he was confused कि जो दूसरा पेरेंट था उसके कैरेक्टर्स कहाँ गए, ड्वार्फनेस कहाँ गई. फिर उसने क्या किया, उसने उन्हीं प्लांट्स को जो उसको फर्स्ट जनरेशन में मिले थे उनको उसने आपस में सेल्फ पॉलिनेट होने दिया. And then he again got the seeds, he grew those seeds, and then he find some different result. The result was again some of the plants were tall and some of the plants were dwarf with a ratio of 3:1. यानी कि जो प्लांट्स उसको यहाँ मिले थे F1 जनरेशन में हाइब्रिड्स, उसने उनको जब सेल्फ पॉलिनेट कराया तो उसको कुछ प्लांट्स जो थे वो टॉल मिले और कुछ ड्वार्फ मिले. टॉलनेस जो थी प्लांट्स में वो 75% प्लांट्स में थी और ड्वार्फनेस जो थी वो सिर्फ 25% plants में थी. But when he checked the genotype, the genes of the plants of F2 generation, he find that the ratio was 1:2:1. That means 25% pure tall, 25% pure dwarf, and 50% hybrid tall plants were there. ये रिजल्ट उसको जीनोटाइप पे कैसे पता चला? जो प्लांट्स उसको F2 जनरेशन में मिले ड्वार्फ प्लांट्स, उसने फिर क्या किया, उसने फिर जो है अपने हाइब्रिड प्लांट्स को ड्वार्फ प्लांट से जो हाइब्रिड मिले थे F1 जनरेशन में उनको उसने ड्वार्फ प्लांट से जो है वो क्रॉस कराया. जब उसने क्रॉस कराया तो उसको रिजल्ट क्या मिला, यानी अब ये आ गई F3 जनरेशन. F2 जनरेशन में जो उसको प्लांट्स मिले थे ड्वार्फ,
उनको उसने क्रॉस कराया किससे, F1 जनरेशन के हाइब्रिड टॉल प्लांट से, तो उसको रिजल्ट कुछ डिफरेंट मिला। अगर कि ये हेट्रोजाइगस यानी कि हाइब्रिड टॉल हैं F1 जनरेशन के, तो रिजल्ट आएगा 50-50%, 50% टॉल प्लांट्स और 50% ड्वार्फ प्लांट। और अगर के ये प्योर टॉल प्लांट होते, प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ का होता, जैसे कि फर्स्ट जनरेशन में हुआ था, तो ऑब्वियसली ऑल द प्लांट्स विल बी द taller plants. So this kind of cross is known as test cross. Test cross we will discuss later on. So on the basis of this monohybrid cross, he gave the law of dominance. Law of dominance क्या कहती है कि जो जीन्स होते हैं वो एक पेयर होता है फैक्टर्स का, और ये फैक्टर्स जो होते हैं जब डिसिमिलर होते हैं, एक जनरेशन में हम डिसिमिलर पेयर के फैक्टर्स में क्रॉस कराते हैं, तो वन ऑफ द कैरेक्टर बिकम्स डोमिनेटिंग एंड द अदर वन बिकम्स रेसेसिव। जैसे यहाँ पर टॉलनेस वॉज द डोमिनेटिंग कैरेक्टर and the dwarfness was the recessive character, and as a result in F1 generation only the dominating character is able to express itself. लॉ ऑफ डोमिनेंस कहती है कि फर्स्ट जनरेशन में जो है, जब अनलाइक कैरेक्टर्स में हम जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में क्रॉस कराते हैं, तो जो डोमिनेटिंग कैरेक्टर होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, और जो रेसेसिव कैरेक्टर होता है वो सप्रेस हो जाता है। हालांकि उसके जीन्स उसमें रहते हैं, लेकिन वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। Then the second law was law of segregation. Segregation means separation. अब law of segregation उसने इसके बेस पर कैसे दी, देखिए जैसे कि ये प्लांट है, ठीक है, जिसके दो एलिमेंट्स हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। जब हम इनके गैमेट बनाएंगे तो हमें मालूम है कि एक गैमेट में, ठीक है, एक गैमेट में फैक्टर के पेयर्स में से खाली एक ही फैक्टर यानी एक ही एलीली जाएगा, या तो एक गैमेट में कैपिटल टी जाएगा या फिर स्मॉल टी जाएगा। और जब ये खाली कैपिटल टी गया तो ये तो प्योर टॉल हो गया, और जब ये स्मॉल टी गया तो ये प्योर ड्वार्फ हो गया। सो अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ inheritance, that is law of segregation, at the time of gamete formation only one allele of a character moves to one gamete, and that's why this law is also known as law of purity of gametes, यानी कि जब इनका क्रॉस होगा तो ये एक नया कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ठीक है। अब जो थर्ड लॉ है, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इट वाज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ द dihybrid cross, and this dihybrid cross we will discuss in the next video. Thank you.